Hello everyone, good morning. This is Mahesh Shah from Surat. Welcome to my YouTube channel. This video is for Standard 8, Semester 2, Chapter 6, Human Resources, Part 3. So friends, in last video we talked about population growth and the reasons of the population growth. Now in this video we are going to discuss more further about this human resource concept. But before that, I would like to tell you that subscribe the channel, press the bell icon, and like the video. Okay, so this is the chart of the population growth of our country. That in which year, what kind of number of peoples increase in our country, that is mentioned in this chart. With that, I have graph also, bar graph, that you can understand this data properly with this bar graph. So discuss in a group and document the outcome of your discussion. So discuss with your friends about population growth or the person who knows about all these things. Discuss these things with them. Do all the societies cherish the idea of small family, happy family? So we talked about earlier that the concept of the small family, that if we want to curb this population growth ratio, then ultimately we have to follow the concept of small family. But is that possible that all the people are happy with this small family concept? So answer is both, either yes or no. Why? Because it is depend on the circumstances of the person. That if his situation is worse, then ultimately the uh, more member of the family helps him in his trouble time, and that is why at that time the big family is good option. But with that you have to think that what is the income source you have. If you have good income source and you can fulfill all the desires and demands of the family member, then ultimately you approach for the big family. But the person is only one to one and the income is limited, then ultimately the concept of small family more useful than the big family. Another question, what should be done to remove the suppress superstitious belief, orthodox views and illiteracy from our society? So there is only one option of this all problem, and that is education. They spread more and more education. Pay attention to your study, and then after you can curb all these problem. So in last point we discussed, let me show you that here we discuss about this graph. Here 1921 is the only year of the Indian history where population decreases due to the diseases, because at that time death rate was DR is greater than BR, and that is why population decrease, right? So this is the reason why in 1921 the birth rate is goes gone down, because at that time death rate is high. Now in this table the same data given in a number form. So you can see this clearly that in 1901 this is the first number of our population. Before that in the history there was no mention of any kind of population number. So we count from 1901. So at that time 23 crore 83 lakh 96,327 people lived in our country. That increase in 1911 goes to 25 crore, so 13 lakh increase. What is the percentage between census? So this is the first number, 5.8%, and annual growth rate. It means the birth rate was only 0.6%. Then after in 1921, see the number here, 90,000, 25 lakh, 25 crore, 20 lakh, 93,000, while here 25 lakh, 25 crore, 13 lakh, 21,000. So how many number decreased? 7 lakh, 72,177. So here the percentage between census, it means from this year to this year was minus 0.3, and annual growth rate means birth rate was 0, right? Because death rate was high. Then after you check all the numbers, the number is constantly increased. In 1931 there was 11 crore, sorry, 27 lakh
2 crore 76 lakh increase. Then after in 1941 3 crore increase, 3 crore 96 lakhs, almost 4 crore. Then after 4 crore 24 lakh. Then after from 1951, it means the year of independence, that when we implement first planning commission, which is at present known as the Niti Aayog, National Information for Transforming India Ayog. This is the full form of Niti Aayog. So that implement, when our government started to plan and provide basic facility to the people, then ultimately death rate goes down. But birth rate was not in control, and that is why from 1951 to 61, directly 7 crore people increase in our country. Then after 71, 10 crore, 81, 13 crore, 91, 16 crore, 2001, 18 crore. विदिन अ डिकेड, यानी 10 साल में सीधे 18 करोड़ लोग बढ़ गए, और 2011 में भी 18 करोड़ बढ़े थे. अब 2021 में जब हम देखने जाएंगे तो अकॉर्डिंग टू द number of people, the ratio goes down. But if we check the number individually, then this is quite high, because we in 2011 the population was 121.2 crore, and in 2021, means in this current year when the census will held, at that time we find 133 crore, approximately 12 crore people increase in our country. So according to the 2011, 6 crore people decreases. Why? Because the education spread more and more. Here one more data I have to show you. That see, 1971 year, 10 crore increase, percentage wise it was the highest percentage received in our country in the history. According to the history, that was 24.80%. The annual growth rate was 2.20%. It means every year around 20 crore people increase, 220 lakh people increase in our country, and progressive growth rate was 129.94%. So अगर पॉपुलेशन बढ़ती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. जैसे मैंने अभी आपको बोला कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में और जापान में पॉपुलेशन डिक्रीजिंग का प्रॉब्लम चालू है. वहाँ की गवर्नमेंट बेबीज प्रोड्यूस करने के लिए अब रिवॉर्ड्स देती है, कैश प्राइजेस देती है. वाई? बिकॉज इन दैट काइंड ऑफ कंट्री बर्थ रेट इज डाउन, एंड डेथ रेट, ड्यू टू मेडिकल फैसिलिटी दे कंट्रोल द डेथ रेट. बट ड्यू टू द lack of the concept of big family, people believed in small family, and they are not interested to marriage to any other one, and that is why birth rate suddenly goes down below the zero. अब इस तरह से पॉपुलेशन घटती रहेगी तो वो कंट्री का फ्यूचर नहीं रहेगा. ये दोनों एक्चुअली में दोनों सिचुएशन में प्रॉब्लम है. अगर पॉपुलेशन हद से ज़्यादा बढ़े तो भी प्रॉब्लम होगा, और कम हो जाए तो भी प्रॉब्लम होगा. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन बर्थ रेट एंड डेथ रेट इन अ सेम रेशियो. पर कुछ कंट्री ऐसी है जहाँ पे ये बर्थ रेट बहुत नीचे चला गया है, तो वहाँ की गवर्नमेंट पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए एनकरेज करती है. हमारे जैसी कंट्री है वहाँ पे बर्थ रेट बहुत ही हाई है, तो गवर्नमेंट पॉपुलेशन कम करने के लिए एनकरेज करती है. तो अब ये जो नंबर्स 1971 के बाद जो नंबर्स डिक्रीज हुए, उसका मेन रीज़न है एजुकेशन. ड्यू टू एजुकेशन नाउ पीपल अवेयर अबाउट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ स्मॉल फैमिली. यही बात यहाँ चार्ट में दिखाई गई है कि किस तरह से 91 में पॉपुलेशन थी, और देखिए ये 2011 में 121 करोड़. ये आपके सामने ब्लैक वाला चार्ट है. अब 2021 का चार्ट आएगा तो ये पिलर उससे भी बड़ा हो जाएगा. तो एजुकेटेड जो लोग होते हैं वो स्मॉल फैमिली का कॉन्सेप्ट अच्छे से जानते हैं, और एजुकेशन के थ्रू ही हम ये पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं. अब डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, व्हाट इज मीन बाय डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन? सो इन अ पर्टिकुलर स्क्वायर किलोमीटर हाउ मेनी पीपल आर लिविंग, दैट इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. So see the definition of the density of population. Density of population means एक पर्टिकुलर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में एवरेज कितने लोग रहते हैं उसको डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बोला जाता है. तो
उसके पीछे भी अलग अलग रीज़न है, जैसे माउंटेनियस रीजन होगा, डेजर्ट रीजन होगा, फॉरेस्ट रीजन होगा, वहाँ पे डेंसिटी कम मिलेगी, वहाँ पे कम लोग रहते हैं. वाई? बिकॉज देर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ बेसिक फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, agriculture, and that is why people dislike to live that kind of area. But those regions which develop well, in that kind of region we found more and more population. That is why the density of that region was is quite high than the other places. So see, here all the charts are given. It is very interesting topic to understand. So the average number of people living per square kilometer area is termed as the density of the population. एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग अंदाजे रहते हैं उसको डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बोला जाता है. पॉपुलेशन डेंसिटी इज एसोसिएटेड विद सोशल, इकोनॉमिक एंड जियोग्राफिकल कंडीशन. यानी एक ही रिलीजियस के लोग साथ में रहना पसंद करते हैं, जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज जहाँ पे अच्छी हो वहाँ पे लोग रहना पसंद करते हैं, जहाँ पे एग्रीकल्चर फैसिलिटी, इरिगेशन फैसिलिटी, इंडस्ट्रीज अच्छी सेटअप हो वहाँ लोग रहना पसंद करते हैं, जहाँ पे एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटी अच्छी डेवलप्ड हो वैसे रीजन लोग सिलेक्ट करते हैं. तो डेंसिटी के ऊपर जो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं वो कौन से हैं? तो ये हैं सोशल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर एंड जियोग्राफिकल फैक्टर. सो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये एक कॉन्सेप्ट है पॉपुलेशन का ही. डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हम इसके बाद में डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पे हमें दिखाई देगा कि वाई इंडिया इज इन द कैटेगरी ऑफ डेवलपिंग नेशन एंड हाईली पॉपुलेटेड नेशन. क्योंकि वर्ल्ड के जो डिजिट्स हैं, अकॉर्डिंग टू दैट इंडिया के डिजिट्स पूरी दुनिया के पॉपुलेशन ग्रोथ डिजिट्स जो है उससे हाई है. तो यहाँ पे देखिए कि वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन है, ये 2008 की बात है, 6,749.7 मिलियन पीपल. यहाँ पे 2005 और 10 के बीच में ग्रोथ रेट कितना था? 1.2%. रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी अकॉर्डिंग टू 2007 2.54%. इन्फेंट मोर्टालिटी रेट पर 1000, यानी 1000 बच्चों के सामने बॉर्न हुए बच्चे कितने मरते हैं उसका रेशियो था 49 बच्चे. मेल एक्सपेक्टेंसी जो लाइफ थी मिनिमम वो 65.1% और फीमेल की 69.6%. अब वही बात करें डेवलप्ड नेशन में, तो जितने भी डेवलप्ड नेशन है दुनिया के, जैसे अमेरिका, कनाडा, जापान, रशिया, वहाँ की टोटल पॉपुलेशन कितनी होती है? तो 1226.3 मिलियन ओनली, बस इतनी ही. उनका एवरेज ग्रोथ रेट है 0.3%. वहाँ पे रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी है 1.60. उसके ऊपर जो इफेक्ट करता फैक्टर है वो है क्लाइमेट, क्योंकि कोल्ड रीजन के लोग जो जहाँ पे रहते हैं कोल्ड रीजन में, वहाँ पे प्रोडक्टिविटी रेट कम होता है क्योंकि गर्ल्स की मैच्योरिटी आने में वहाँ पे टाइम लगता है. वहाँ पे देखिए सब फैसिलिटी डेवलप्ड होने की वजह से वहाँ पे पर 1000 7 बच्चे पर ईयर मर जाते थे ड्यू टू एनी रीज़न. वहाँ पे मेल की एक्सपेक्टेंसी देखिए लाइफ की 73 ईयर मिनिमम और फीमेल की 80 ईयर. अब डेवलपिंग नेशन जैसे चाइना, इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, इनकी टोटल पॉपुलेशन करें तो वो कितनी होगी? 5523.4 मिलियन. यानी टोटल पॉपुलेशन में मैक्सिमम नंबर जो है वो तो डेवलपिंग नेशन से हैं. और उसका रीज़न भी है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लेक ऑफ अवेयरनेस नहीं है, एंड ड्यू टू दैट द नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज एवरी ईयर वेरी रैपिडली. तो यहाँ पे देखिए एवरेज ग्रोथ रेट 1.4 है, प्रोडक्टिविटी रेट भी 2.73% है. यहाँ पे पर 1000 कितने बच्चे मर जाते हैं? तो 54. यहाँ पे एवरेज लाइफ देखिए 63 ईयर्स और फीमेल की 67 ईयर्स. और उसमें अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया की पॉपुलेशन 1186.2 मिलियन मीन्स 118 करोड़. 118 करोड़ तो खाली इंडिया की पॉपुलेशन है. एवरेज ग्रोथ रेट पूरी दुनिया में सबसे हाई 1.5%. रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी पूरी दुनिया में हाई 2.78%. उसके रीजंस क्या हो सकते हैं? तो चाइल्ड मैरिज होते हैं, पॉवर्टी होती है, इलिटरेसी होती है, ये सब इसके रीज़न है. यहाँ पे मरने वाले बच्चे भी सबसे ज़्यादा है 54 और लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी दुनिया में सबसे कम है, मेल की 63 ईयर्स और फीमेल की 66 ईयर्स.
आज की डेट में 2021 में ये डेटा चेंज हुए हैं, काफ़ी डिक्रीज हुआ है, पर ये नंबर को कंप्लीटली कंट्रोल करने के लिए जितने भी लोग हैं उनको सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा। मीन्स फ्यूचर की जनरेशन आप लोग हो, अब आपको सोचना है कि आपको कैसी नेशन चाहिए, हाईली पॉपुलेटेड विथ मैनी प्रॉब्लम्स और लो पॉपुलेटेड विथ फैसिलिटी, कैसी आपको कंट्री चाहिए। अब यहाँ पे पॉपुलेशन की फ्यूचर ब्रॉडकास्ट हुई है और प्रेजेंट सिनारियो भी है कि 2008 में चाइना नंबर 1 है, 2050 में इंडिया नंबर 1 हो जाएगा। 175 करोड़ लोग हमारी कंट्री में रहते होंगे, तो सोच लीजिए। यहाँ अभी इंडिया सेकंड है, फिर चाइना सेकंड हो जाएगा, क्योंकि चाइनीज़ गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए, बहुत सारी पॉलिसीज़ उनकी इम्प्लीमेंट है, और मेन वहाँ के जो सिटीज़न है दे आर वेरी सेंसिटिव अबाउट दिस प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। यूएसए थर्ड नंबर पे है, 2050 में भी यूएसए थर्ड नंबर पे रहेगा। इंडोनेशिया फोर्थ पे है, 2050 में भी इंडोनेशिया फोर्थ पे रहेगा। ब्राज़ील फिफ्थ में है, पर 2050 में पाकिस्तान फिफ्थ नंबर पे आ जाएगा। पाकिस्तान 6 नंबर पे 2008 में, पर 2050 में नाइजीरिया हो जाएगा। नाइजीरिया 7 नंबर पे 2008 में, पर 2050 में ब्राज़ील 7 नंबर पर आ जाएगा। 8 नंबर पर बांग्लादेश है, वो बांग्लादेश 2050 में भी शायद 8 नंबर पे रहेगा। 9 नंबर पे रशिया है, तो 9 नंबर पे कॉन्गो आ जाएगा, यानी रशिया ये लिस्ट से निकल जाएगा। और 10 नंबर पे जापान है, तो वहाँ पे फिलीपाइंस आएगा। ये मीन्स कि जापान ने भी अपना बर्थ रेट कंप्लीट कंट्रोल कर लिया है, वहाँ पे डेथ रेट भी कंट्रोल है, और बर्थ रेट आज की डेट में बिलो द ज़ीरो हो गया है। तो वहाँ की गवर्नमेंट पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए एनकरेज कर रही है। तो ये है पॉपुलेशन ग्रोथ का चार्ट। अब वापस हम आते हैं वही कॉन्सेप्ट पे, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के ऊपर। तो पीपल वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, इवन इन आवर कंट्री ऑल द रीजन्स और स्टेट्स डोंट हैव द सेम पॉपुलेशन। तो जितने भी स्टेट है सब जगह पे सेम पॉपुलेशन नहीं है। यहाँ पे एक मैप है, तो वहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि कुछ स्टेटों में ज़्यादा पॉपुलेशन है। ये देखिए, जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, दिल्ली है, ये जो कलर्स आप देख रहे हैं वो हाई डेंसिटी वाले हैं। यहाँ पे बेंगलुरु वगैरह है, ठीक है। ये जो ग्रीन पोर्शन है वहाँ पे लेस डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है। तो उसके रीज़न स्टेट के डेवलपमेंट के ऊपर डिपेंड है। देयर इज़ नो यूनिफॉर्मेलिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ हाई इन द फर्टाइल एल्यूवियल प्लेन्स ऑफ रिवर। जैसे यहाँ गंगा के प्लेन्स हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स हम जिसको बोलते हैं, जो आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर फैसिलिटी ज़्यादा है, तो यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है। Alluvial plains of river, deltas, industrial area, etc. On the other hand, the population density is low in the areas like desert, mountains and forest due to unfavorable condition. तो जैसे मैंने बोला कि जहाँ पे कंडीशन अच्छी होगी वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, जहाँ पे कंडीशन हार्श होगी वहाँ पे पॉपुलेशन कम होगी। अब गुजरात के 5 स्टेट की बात है यहाँ पे, तो यहाँ पॉपुलेशन बताई गई है कि अहमदाबाद में 72 लाख है, सूरत में 60 लाख, वडोदरा में 41 लाख, राजकोट में 37 लाख, बनासकांठा में 21 लाख। ठीक है, ये नंबर पुराने हैं, ये नंबर ऑफिशियली देखने जाए तो बहुत ज़्यादा है। उसमें मेल फीमेल में डिफरेंस देखिए, मेल 37 लाख है, फीमेल 34 लाख है। सूरत में 33 लाख मेल है, फीमेल ओनली 26 लाख है। वडोदरा में 21 लाख मेल है, फीमेल 20 लाख है। राजकोट में 19 लाख मेल है, फीमेल 18 लाख है। और बनासकांठा में 16 लाख मेल है, जबकि फीमेल ओनली 5 लाख है। तो जब हम सेक्स रेशियो के बारे में बात करेंगे तब ये हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन देखते हैं कि सूरत में देखिए पर स्क्वायर किलोमीटर 1376 है, पर यही नंबर अगर आप दिल्ली या मुंबई में चेक करोगे तो वहाँ पे 6000 मोर पीपल लिविंग इन पर स्क्वायर किलोमीटर। दैट इज़ क्वाइट हाई नंबर, बहुत बड़ा नंबर है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में 6000 से ज़्यादा लोग रहते हैं। तो दिस इंडिकेट दैट दिल्ली इज़ मेट्रो सिटी, डेवलप्ड सिटी, एंड दैट इज़ वाई पीपल प्रीफर टू लिव इन दैट काइंड ऑफ रीजन फॉर द जॉब, ऑक्यूपेशन, money purpose. These are medical facility, education facility. These are the reason to more densely area
वाई द पर्टिकुलर एरिया इज मोर डेंसली, दिस आर द रीजन। अब सूरत सबसे ज़्यादा है तो गुजरात में हम ये बोल सकते हैं कि सूरत जो है इट इज़ वन ऑफ द गुड सिटी फॉर लिविंग। फिर अहमदाबाद 8900, आनंद 711, गांधीनगर 660, नवसारी 602। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं? तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज अफेक्टेड बाय वेरियस जियोग्राफिकल फैक्टर्स लाइक एल्टीट्यूड, हाइट कितनी है, क्लाइमेट कैसा है, मॉडरेट क्लाइमेट होगा तो वहाँ लोग ज़्यादा प्रिफर करेंगे, वेदर कैसा है, टोपोग्राफी कैसी है, टाइप ऑफ क्रॉप्स कैसे हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल, वाटर एंड एनर्जी रिसोर्सेज एक्सेट्रा। ये सब फैक्टर है जिसके जो इफेक्ट करते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के ऊपर। अलॉन्ग विथ इट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटी, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, अर्बनाइजेशन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा ऑल्सो अफेक्ट द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो ये सब भी रीज़न है जो पॉपुलेशन के ऊपर, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के ऊपर इफेक्ट करते हैं। अब 5 मैक्सिमम पॉपुलेटेड स्टेट की बात करें तो यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश आते हैं। यूनियन टेरिटरी की बात करें तो लक्षद्वीप आइलैंड जहाँ पे कम से कम पॉपुलेशन है, लिस्ट पॉपुलेशन, तो लक्षद्वीप आइलैंड पे कम है, दीव और दमन में कम है, दादरा और नगर हवेली में कम है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में कम है और सिक्किम में ये पॉपुलेशन कम है। तो यहाँ पे वही चार्ट दिखाया गया है कि कहाँ पे कितनी पॉपुलेशन डेंसिटी है। तो जहाँ पे ये कलर है 100 से 300 होगी, यहाँ पे जो ये कलर है लाइट येलो वहाँ पे लेस देन 100 होंगे। फिर ब्लू कलर है वो 300 से 500 इंडिकेट करते हैं, ऑरेंज कलर है 550 से लेके 1000 इंडिकेट करते हैं। देखिए ये, तो यहाँ पे फैसिलिटी ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है। अब यहाँ पे वही रीजन्स बताए गए हैं अलग अलग कैटेगरी में, जियोग्राफिकल रीजन, इकोनॉमिक फैक्टर एंड सोशल कल्चर। तो ये सब रीजन्स के जो है वो पॉपुलेशन डेंसिटी के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं। तो ये है पॉपुलेशन डेंसिटी। अब जो हमारा टॉपिक है वो है बर्थ रेट, जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि बर्थ रेट क्या। तो एन्यूअली पर 1000 हाउ मैनी न्यू बॉर्न बेबीज आर देयर, दैट इज कॉल्ड बर्थ रेट। द टोटल लाइव बर्थ इन 1 ईयर पर 1000 पर्सन इन अ गिवन एरिया। अब डेफिनेशन में ये याद रखना कि जो पर्टिकुलर वर्ड है वो होना ही चाहिए, अदरवाइज योर डेफिनेशन विल बी रॉन्ग। तो पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहे हैं, इज नॉन एज बर्थ रेट। ये एरिया के हिसाब से बर्थ रेट भी अलग अलग होता है, पर 1000 नए कितने बॉर्न हुए वो। For the past few years, the birth rate in India has been constantly declining. Birth rate कम हुआ है. People exercise family planning more than before. In rural areas, the implementation of family planning is much lesser due to lack of education, lack of health facility, poverty, unemployment and ignorance about the means of birth control. तो rural area जो है जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है वहाँ पे बर्थ रेट हाई है। सिटी जो अर्बन एरिया है वहाँ पे एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटी, ये सब की वजह से बर्थ रेट काफ़ी कम हुआ है। तो यहाँ पे देखिए कि इंक्रीज इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन कब बढ़ती है? जब डेथ रेट कम होता है और बर्थ रेट हाई होता है। स्टेडी पॉपुलेशन कब होती है? जब बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों इक्वल होते हैं। और पॉपुलेशन डिक्रीज कब होती है? जब बर्थ रेट कम और डेथ रेट ज़्यादा होता है। जो हमने बात की थी कि 1921 ऐसा ईयर था जहाँ पे ये सिनारियो था, बाकी सब ईयर में ये सिनारियो है। बेस्ट सिचुएशन ये है जहाँ बर्थ रेट और डेथ रेट इक्वल हो। ठीक है, उसके बाद आता है डेथ रेट। तो पर 1000 कितने लोग एक साल में मर जाते हैं, दैट इज कॉल्ड डेथ रेट ऑफ दैट एरिया। सो द नंबर ऑफ डेथ इन 1 ईयर पर 1000 पर्सन इन अ स्पेसिफिक एरिया इज टर्म्ड एज डेथ रेट। यहाँ पे ये स्पेसिफिक एरिया वर्ड डेफिनेशन में होना ही चाहिए, वरना आपकी डेफिनेशन गलत मानी जाएगी। The one who takes birth dies too, hence the death rate can never be zero। क्योंकि बर्थ रेट ज़ीरो हो सकता है पर डेथ रेट ज़ीरो नहीं हो सकता है। वाई? क्योंकि जितने लोग बॉर्न करते हैं अर्थ के ऊपर वो एक ना एक दिन तो मरने वाले हैं। तो डेथ रेट नेवर बिकम्स ज़ीरो, बट बर्थ रेट को हम कंट्रोल करके ज़ीरो कर सकते हैं। Still, various researchers, medical treatments, medicines, vaccination, control over disease, new technology, etc. can bring down the
डेथ रेट। तो डेथ रेट को अभी ये सब फैसिलिटी की वजह से कम किया जा रहा है। इंडिया में पॉपुलेशन इंक्रीज का एक रीज़न ये है कि डेथ रेट सडनली डाउन हो गया ड्यू टू मेडिकल फैसिलिटी एंड अदर फैसिलिटी गिवन बाय द गवर्नमेंट। बट बर्थ रेट को कंट्रोल करने के लिए जो अवेयरनेस होनी चाहिए वो हमारे यहाँ नहीं थी। तो यहाँ पे दो चार्ट हैं, आप उसको देख सकते हैं कि डेडलीस्ट डिसीज इन इंडिया कितने कितने लोग मरे थे। ट्यूबरकुलोसिस से 3 लाख, टीबी से 3,75,000 मरते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ इसको। हार्ट डिसीज से 15,54,000, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसीज यानी ब्रीथिंग का जो प्रॉब्लम होता है उससे 8,33,000, स्ट्रोक जो आते हैं उससे 6,56,000, कैंसर से 5,40,000, डायरिया से 5,90,000 और टीबी से 3,75,000। तो ये इंडिया के सबसे डेडलीस्ट डिसीज है। और यहाँ पे भी एक है केसेस ऑफ डेथ कम्युनिकेबल मैट्रिनल पेरेंटियल यानी जो हेरिडिटरी में आते हैं वो, न्यूट्रिशनल कंडीशन उसकी वजह से ज़्यादा लोग मरते हैं। फिर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज से मरते हैं, फिर इंजरीज की वजह से मरते हैं, और सिम्टम्स साइंस एंड ऑल इल डिफाइंड कंडीशन उससे इतने लोग मरते हैं। तो ये है आपका डेथ रेट। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम यहाँ तक ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पॉपुलेशन कंपोजिशन के बारे में डिस्कस करेंगे, किस तरह से उसमें चेंजेस आते हैं, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के बारे में। तो आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। स्टिल इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी योर क्वेश्चन एंड subscribe the channel and press the bell icon that you will get notification of part 4 of this chapter। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत सारे ये स्टेटिस्टिकल डेटा हैं एंड इट इज़ नेसेसरी टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल दिस थिंग बिकॉज यू आर द फ्यूचर सिटीजन ऑफ द नेशन। ओके फ्रेंड्स, तो stay home, stay safe, wash your hands many times, wear a mask and maintain social distance. Take care of yourself and your family too. God bless you. Thank you very much.